Hello students, welcome to the video lecture series for the subject economics. Student, today I'll be talking about the Keynes psychological law of consumption. This video is in continuation with the previous video about the consumption function. Now, the concept, like you are aware what was consumption. So now the concept of consumption is based on the basic law which was given by the Keynes. So it is given after the name of the renowned economist Keynes and is termed as Keynesian psychological law of consumption. It was given in the early 90s. So now this rule, this law basically says that whenever there is an increase in the consumption, increase in the income of the consumer does not use the exact increase in income for consumption. Means at an initial level maybe जितना income से increase हो रहा हो consumption भी बढ़े, but after that, after a level, beyond the level, the consumer will start distributing the income between consumption and savings. Now this law basically gives you the psychological relationship. The psychological law of consumption gives you the relationship between the two main aspects, that is income and consumption, and the pattern which the consumers or the normal household follows with regards to their distribution of income. So as stated by Keynes, the psychology of community is such, means the people they follow the psychology that when the aggregate real income increases, now when there is an increase in the aggregate income, the aggregate consumption also increases. Now it is clear that when there is increase in income, there will be increase in consumption, but the point to be remembered is that it will be not as much as income. समझने के लिए 100 रुपये अर्न कर रहे थे, 100 कंज्यूम कर लिया. अब 1000 अर्न कर रहे हैं तो हमने अब शायद उसमें से 800 को कंज्यूम किया, या 10,000 हुआ या 1 लाख रुपीज़ हुए. बढ़ने से भाई 10,000 से 1 लाख मीन्स कितने बढ़ गए? 90,000 की इनकम बढ़ी है, लेकिन कंजम्पशन पूरे 90,000 की नहीं होगी, वो कंपेरेटिवली लेसर होगी. ये फाइंडिंग्स थी, ये कंक्लूजन्स था जो कीन्स ने डिराइव किया था. सो नाउ दिस लॉ इज बेस्ड ऑन 3 इंटर रिलेटेड प्रोपोजिशंस. नाउ पहला कि इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, बट एट अ लेसर प्रपोर्शन. ऐसा क्यों है? क्योंकि जब इनकम बढ़ती है तो ग्रेजुअली उसकी मेजर वांट्स ऑलरेडी पूरी हो चुकी है, तो वो सेम रेट पर अपनी कंजम्पशन को नहीं बढ़ाता है एक पर्टिकुलर लेवल के बियॉन्ड. दूसरा प्रपोजिशन क्या है कि जो कंज्यूमर है वो अपनी इनकम को बेसिकली 2 पैरामीटर्स में डिवाइड करेगा. 1 इज कंजम्पशन एंड सेकेंड इज सेविंग. इनकम का जो अर्निंग है, वो जो इंक्रीज है इनकम का, वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा, डिवाइड करेगा बिटवीन सेविंग एंड consumption. And the third is कि an increase in income thus leads to an increase in consumption as well as saving. इनकम बढ़ेगी, कंजम्पशन भी बढ़ेगी और पैरेलली आपकी सेविंग्स भी बढ़ेगी. ये कंक्लूजन्स डिराइव किए थे कीन्स ने अपनी साइकोलॉजिकल लॉ से. Okay, so now I'll come to the assumptions. Obviously, every economic theory is based on certain assumptions. Now, पहला assumption क्या था? Invariability means जो institutional और जो psychological factors हैं, उसमें कोई change नहीं है. They are constant. Means the institutional and psychological factors of the people remain constant. यानी इसकी वजह से propensity to consume पर कोई impact नहीं आएगा. Now, ऐसे factors कौन से? उसकी spending habit क्या है? Inflation पे क्या फर्क पड़ रहा है? पॉपुलेशन बढ़ रही है, घट रही है? इनकम इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड? ऐसे सारे फैक्टर्स को हम अज्यूम करते हैं कि ये सेम है, देयर इज नो चेंज. Second, we make assumption that there is a laissez-faire economic policy. Laissez-faire का मतलब जब कोई भी government intervention नहीं है, means it's a free economy where there are no interventions, no restrictions which are imposed by the government, and the demand and supply, means the pricing, they all are determined on the basis by the market forces. Okay, और जो last assumption है वो भैया कि सीधा सा है, we assume that economy is working. No, it's a normal इकोनॉमिक कंडीशन. मीन्स किसी तरह की फ्लक्चुएशंस, किसी तरह की अनवांटेड, अनफोर्सीन, एक्स्ट्रॉर्डनरी सिचुएशंस या अनयूजुअल सिचुएशंस नहीं है इकोनॉमी में, जैसे कि वॉर, किसी तरह का इन्फ्लेशन, या आप कह सकते हो तुम्हारे रेवोल्यूशंस. ये ऐसी अनयूजुअल सर्कमस्टांसेस इकोनॉमी में एग्जिस्ट नहीं कर रही है. तो लॉ इज बेस्ड ऑन, मीन्स अगर आप यहाँ पर देखें तो क्या लिखा है? दिस लॉ इज बेस्ड ऑन
हाँ, द लॉ इज बेस्ड ऑन नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर, और नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर क्या है कि डेल्टा वाई विल बी इक्वल टू डेल्टा सी प्लस डेल्टा एस, मीन्स जो भी इनकम हम जनरेट कर रहे हैं वो अलोकेट हो रही है कंजम्पशन और सेविंग के बीच में. नाउ दिस कैन बी एक्सप्लेन फर्दर विद द हेल्प ऑफ अ टेबल, दैट schedule which has been drawn below. Income, consumption and savings, these are the three parameters which have been studied. Now at an level of income, or income level of zero, means when the consumer is earning no income, you will be amazed to know कि अगर हम income earn नहीं करते तो consumption zero नहीं होगी, हम कहीं ना कहीं consume करेंगे, और consume करने के लिए हम क्या करेंगे, अपनी previous savings को use करेंगे. तो यहाँ पे आपको almost clear है कि प्रीवियस सेविंग में यहाँ पर आप देख रहे हैं सेविंग वाले उसमें आपको जो लाइन वैल्यू मिल रही है वो नेगेटिव है -20, बिकॉज वी आर नॉट सेविंग, वी आर जस्ट फॉर कंजम्पशन, वी आर गोइंग फॉर डिस सेविंग. जो पहले सेव किया है उस अमाउंट को यूज करके अपना कंजम्पशन फुलफिल कर रहे हैं. नाउ इनकम बढ़ गई, इनकम कहाँ से पहुंच गई, 0 से 50 पे पहुंच गई है. तो अगर इनकम बढ़ रही है तो आप देख रहे हैं कंजम्पशन भी बढ़ी, लेकिन अब कंजम्पशन सिंस इनिशियल फेज है कंजम्पशन भी अभी ज़्यादा चाहिए, तो हमने फिर से क्या किया, वी हैव गॉन फॉर डिस सेविंग यानी -10 का फिगर. ओके, एंड जो नेक्स्ट लेवल इनकम फिर फर्दर बढ़ती है, 50 से पहुंच जा रही है 100. तो अब जितने से इनकम बढ़ी यू विल फाइंड दैट द कंजम्पशन इज ऑल्सो इंक्रीज एट द सेम लेवल. मीन्स इस केस में इनकम अगर 100 है, कंजम्पशन भी 100 है, मीन्स उस केस में सेविंग हमारी क्या है, नल है, 0 है. बट नाउ with the further increase in income from 100 to 150, consumption is also increasing but at a decreasing rate. यानी हमने कितने से कंजम्पशन को बढ़ाई, हमने कंजम्पशन को आपके 40 यूनिट से कंजम्पशन बढ़ाई, यानी कि हमने 10, जो इनकम 50 से बढ़ गई, 100 से 150 हो गई, 50 से बढ़ी जिसको 40 हमने कंज्यूम किया और 10 हमने सेव करा. ओके स्टूडेंट्स, आई थिंक इट्स क्लियर टू यू. नाउ एट अ फाइनल लेवल व्हेन यू आपकी इनकम बढ़ गई 150 से 200, कंजम्पशन भी बढ़ रही है 140 से 180, बट ग्रेजुअली देयर इज अगेन अ सेविंग. ओके, आई थिंक देयर इज अ एरर इन द टेबल. ये जो फिगर है ये 20 होगी, इसको आप प्लीज करेक्ट कर लिएगा अपने नोट्स में कि 200 में से 180 तो कंजम्पशन पे हो गया और 20 हमने क्या करा, सेव करा. तो इस फिगर से आपको क्लियर हो रहा है इनकम भी बढ़ रही है, कंजम्पशन भी बढ़ रही है, एंड ग्रेजुअली आप देख सकते हैं कि सेविंग्स भी बढ़ रही हैं, यानी पैरेलली तीनों चीज बढ़ रही हैं. बट द रेट ऑफ राइज जो है वो इंक्रीज की राइज को हम इनकम के इंक्रीज को हमने डिस्ट्रीब्यूट करा कंजम्पशन में एंड सेविंग्स में. ओके, तो दिस वाज द साइकोलॉजिकल लॉ. नाउ अगर अब हम इसको ग्राफिकली शो करें तो ये देखिए आपका इनकम कर्व है. इनकम कर्व इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड बाय वाई. इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है. ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आप ऐसे लेवल्स हो सकते हैं जब आप कोई भी इनकम जनरेट ना कर रहे हो. ठीक है, इट्स एन अपवर्ड स्लोपिंग कर्व क्योंकि दोनों राइज कर रहा है. उसी तरह कंजम्पशन कर्व आप यहाँ पे देखिए कि कंजम्पशन कर्व जो है वो आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस. क्योंकि अगर आपने टेबल अगर ध्यान रखा है तो टेबल में आपको क्लियर है कि जब इनकम 0 होती है स्टिल हम कंज्यूम करते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम पिछले सेविंग्स को डिसेव कर रहे हैं, वो यूज कर रहे हैं अपनी कंजम्पशन के लिए. तो इसका मतलब वी आर गोइंग फॉर डिस सेविंग. तो इसलिए कंजम्पशन कर्व विल नेवर स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ ओरिजिन, इट विल स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन वाई एक्सिस. ओके, नाउ आप अगर ग्राफ में देखिए तो जहां पर सी कंजम्पशन फंक्शन जो है इनकम का वो है, तो आपको दिख रहा है C इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ y and y is equal to c plus s. Both are the upward rising curve. They intersect at point E. This is the point where income and consumption are same. But below that, the consumer will go for dis-saving. जो आपको यहाँ पे दिख रहा है इस पार्ट से अगर आप क्लियर हो तो this is a portion where the consumer is going for dis-saving, utilizing the previous saving for making current consumption. और यहाँ पर क्या है, सेविंग है, मीन्स यूटिलाइजिंग योर करंट. यहाँ पे सेविंग कब हो रही है, जब इनकम ज्यादा है और कंजम्पशन कम, और डिस सेविंग कम हो रही है जब कंजम्पशन ज्यादा है और इनकम कम. उस केस में हम डिस सेविंग करते हैं. ओके, सो दिस वॉज दी ग्राफिकल प्रेजेंटेशन. और अगर हम आपसे कहा जाए कि इसके इम्प्लीकेशंस क्या है, तो जो मेजर फाइंडिंग्स थी ना कीन्स के साइकोलॉजिकल लॉ में, वो ये थी कि जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो ऑलवेज लेस देन 1 होगा. क्योंकि एमपीसी का जो फॉर्मूला है हमने आपको अपनी पास वीडियो में भी बताया था, दैट इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई. डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई मीन्स डिफरेंस इन कंजम्पशन अपॉन डिफरेंस इन इनकम. आपने पढ़ा कि जो इनकम का चेंज है वो कंजम्पशन के चेंज से ज्यादा होगा,
यानी मैथ्स में अगर डेल्टा सी की वैल्यू कम होगी और मैथ्स अप्लाई करेंगे तो डेल्टा सी विल बी लेस एंड डेल्टा वाई विल बी मोर. न्यूमरेटर मोर डिनोमिनेटर लेस, न्यूमरेटर लेस डिनोमिनेटर मोर विल गिव यू अ वैल्यू विच विल बी लेस देन 1. तो लेस देन 1 मीन्स एमपीसी क्या आ जाएगा आपका, लेस देन 1 आएगा. आई होप स्टूडेंट्स ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है. वाई आई एम गेटिंग लेस देन 1 वैल्यू, बिकॉज डिफरेंस इन कंजम्पशन विल बी लेस, बिकॉज इनकम बढ़ने से कंज्यूमर अपनी इनकम को पूरा कंज्यूम ना करके कुछ सा अमाउंट सेव करेगा, क्योंकि हमें पता है इनकम इज इक्वल टू सी प्लस एस. तो और एमपीसी जो कंप्यूट किया जाता है दैट इज डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई. Okay, so these are the derivations through which I have derived that MPC plus MPS जो होता है that will be equal to 1, क्योंकि जो चेंज है वो हमने अलोकेट करा MPC और MP सेविंग एंड कंजम्पशन में, तो इनके चेंज इन सेविंग चेंज इन कंजम्पशन विल बी इक्वल टू लाइक आपका 1, क्योंकि जो भी वैल्यू एक वैल्यू से जो इनकम का चेंज है वो अलोकेट हो गया इनकम और कंजम्पशन पे. इसीलिए हमें क्या मिल जाता है, दैट इज MPC विल बी लेस दैन 1. इट विल बी मोर देन 0 बट लेस देन 1. सो नाउ इसके इम्प्लीकेशंस की ऑब्वियसली कहाँ पे अप्लाई किया जा रहा है, तो इट गिव्स यू द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी की कैसे तुम्हारे लिए जो कंजम्पशन है, जो साइकोलॉजिकल लॉ है वो बताता है कि हाउ इन्वेस्टमेंट इज इम्पॉर्टेंट फॉर एन इकोनॉमी.